بات کو آپ نوٹ کر لیں، بہت ساری نیکیاں ہم نفس کا غلام بننے کی وجہ سے نہیں کرتے، نفس کی غلامی کی وجہ سے بہت ساری نیکیاں ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے، نفس کی غلامی کی وجہ سے بہت ساری برائیوں سے نہیں بچی۔ جانتے ہیں شراب پینا گناہ ہے، جانتے ہیں سود کھانا گناہ ہے، جانتے ہیں زناکاری جرم ہے، زناکاری بے حیائی ہے، جہنم کی طرف لے جانے والی ہے یہ بیماری، سب کچھ جانتے ہیں۔ جھوٹ بولنا منع ہے، جانتے ہیں جھوٹ جہنم کی طرف لے کر کے جائے گا، جانتے ہیں۔ ہمارے نفس نے ہمیں اس قدر غلام بنا کر رکھا ہے ہمیں کہ ہم اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے۔ جب تک نفس کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، یعنی اپنی صحیح تربیت ہوں گے، تب تک کوئی بھی نیک کام نہیں ہو سکتا۔ نفس کی صحیح تربیت کر لیں اپنی۔ اسلام کو یہ بہت پسند ہے کہ آپ کام تو بڑے کریں، لیکن آپ خود اپنے آپ کو مجرم، خطا کار اور گناہ گار سمجھیں، تنہائی میں بیٹھے اور اپنے نفس کو کوسے کہ نفس تو گناہ گار ہے، تو خطا کار ہے، تو تقصیریں کرتا ہے، تو غلطیاں کرتا ہے، تو لغزشیں کرتا ہے، تو اللہ کے حق کو مارتا ہے، اللہ کا جو حق ہے صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کرتا، جو فرائض ہے صحیح سے ادا نہیں کرتا، جو بندوں کے حقوق ہے وہ ادا نہیں کرتا، ماں باپ کے ساتھ تیرا جیسا سلوک ہونا چاہیے نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ تیرا جو رشتہ ہونا چاہیے نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ تمہارا جو حق ہے وہ نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ تمہارا جو معاملہ ہونا چاہیے نہیں ہے۔ تم لاکھ وعدے کر کے صبح کا ٹائم لے کر کے کل صبح ہم اپنا قرض واپس کر دیں گے، کسی سے 1000-2000 لیتے ہو اور پھر واپس نہیں کرتے ہو، قرض دینے والے کو پریشان کرتے ہو، لوگوں کے حقوق کو مانتے ہو، اپنے نفس کو کوسنا یہ بڑا اچھا ہے۔ جو بندہ اپنے نفس کو گناہگار سمجھنے لگے، یقین جانے وہ بندہ نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ اور اگر ہم نے اپنے نفس کی تربیت نہیں کی، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک نہیں رکھا اور اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، تو یقین جانے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی، کعبہ کا امام بھی تلاوت کر رہا ہوگا ہمارے سامنے، اور تھوڑی کم بھی تلاوت ہمیں خراب لگے گی، امام کو کوسیں گے، برا بھلا کہیں گے، اتنی لمبی تلاوت، اتنی لمبی نماز، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یا 3-4 آیتیں پڑھیں امام صاحب اور نماز ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا تب نہیں ہوگا جب ہم اپنے نفس کی تربیت کریں گے، اپنے نفس، اپنے آپ کو، اگر نفس نہ سمجھ میں آئے، نفس کا مطلب ذات، اپنی ذات، اپنے آپ کو، اپنے آپ کی تربیت جب تک نہیں کریں گے تب تک ہم اور آپ نیکیوں کی لذت اور مٹھاس کو نہیں پا سکتے، گناہوں سے دور نہیں ہو سکتے، نفس کو پاک کرنا پڑے، ورنہ ہمارا یہ جو نفس ہے نا وہ خطرناک، ہمارا یہ نفس اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کراتے کراتے بڑے بڑے گناہ کرا رہے ہیں، اور بڑے بڑے گناہ کراتے کراتے گناہوں کی عادت ڈلواتے ڈلواتے ہم گناہوں کے اس قدر عادی ہو جائیں گے، اور ہمیں گناہوں کی اتنی عادت پڑ جائے گی کہ کسی کو قتل بھی کر دیں گے تو کوئی افسوس نہیں، کسی کا مال بھی کھا جائیں گے کوئی افسوس نہیں ہوگا، ماں باپ کو ستائیں گے تب بھی کوئی افسوس نہیں ہوگا، نماز چھوڑ دیں گے تب بھی کوئی افسوس نہیں ہوگا، بڑے بڑے کام کروائے گا اور بڑے بڑے گناہ کے کام کرنے کی عادت ڈال دے گا، اور یہیں پر نہیں رکے گا ہمارا نفس۔ جانتے ہیں ابلیس جنت سے کیوں نکلا تھا؟ ابلیس نے کفر نہیں کیا تھا، شرک نہیں کیا تھا، اللہ کے علاوہ کسی کے در پہ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس کے نفس کی غلامی نے اس کو جنت سے باہر نکالا۔ نفس کی انا، میں آگ سے پیدا ہوا، انسان مٹی سے پیدا ہوا، مٹی دبنے والی چیز ہے، آگ ابھرنے والی چیز ہے، ابھرنے والی چیز دبنے والی چیز کی عبادت کرے اور اس کے سامنے اپنا سر جھکائے نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مان سکتے، ابلیس نے انکار کر دیا، رب کے دربار سے بھگا دیا گیا۔
पहुंच गया था। कहां? जो सबसे आखिरी सीढ़ी है गुनाह की, वो कह बैठा था अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं रब हूं, मैं खुदा हूं, मैं माबूद हूं। यानी हमारा नफ्स इतना खतरनाक काम करवाएगा कि आखिर में हमको बड़ा बनाते 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 कहेगा लोगों से कहो कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम ही खुदा है, हम ही रब है, हम ही माबूद है। नमरूद ने क्या कहा? नमरूद ने क्या कहा? अगर उसने भी खुदा बनने का दावा किया था ना कि रब के बारे में बोलते हो कि अल्लाह वो है जो जिलाता है और मारता है। ये सिफत, ये खूबी तो मुझ में भी है, मैं भी जिलाता हूं, मैं भी जिलाता हूं, मैं भी मारता हूं। तो नफ्स बहुत बड़े बड़े काम करवाता है, और काम करवाते करवाते हमें खुदाई का दावा भी करवा देता है। ये नफ्स ऐसी चीज है। तो नफ्स की तरबियत बहुत जरूरी है। हमारे नफ्स के अंदर ऐसा नहीं है कि हमारा नफ्स हमेशा बुरे काम ही करने के लिए करता, नहीं। एक नफ्स है, नफ्स हमारा, वो बुरे कामों की तरफ उठाता है, बुरे काम की तरफ लेकर के जाता है। ये करो, वो करो, शराब पियो, जुआ खेलो, सूद खाओ, चोरी के इस रास्ते से कमाओ, काम पत्थर ढोने लगे हो, क्या धूप में काम कर रहे हो, क्यों इस तरह की मजदूरी कर रहे हो, यार ये शॉर्टकट रास्ता है, इस रास्ते से कमा लो, लोगों को ठग कर कमा लो, बुराई की तरफ ले जाता है। और एक नफ्स है जो नेकी के करने पर इत्मीनान दिलाता है। आज हमने बड़े ही ढंग से वजू बनाया, मुअज्जिन की अज़ान सुनकर हम मस्जिद आए, हमने नमाज पढ़ी, पूरा खुतबा सुना, हमारा दिल करता चला आज हमें बहुत अच्छा काम। ये नफ्स मुतमइन्ना हो, ये काम हमें करना है कि हम नेकी का काम इस अच्छे अंदाज में करें कि हमारा नफ्स कहे तूने आज बड़ा अच्छा काम। हमारे नफ्स के अंदर गलत सोच भी है, अच्छी सोच भी, गलत सोच को हटा दे, दूर कर दे, उसको आगे बढ़ने ना दे, और अच्छी सोच को परवान दे। जो अच्छी सोच आए, अच्छा काम करने के लिए हमारा नफ्स कहे, वो काम हम करें। कुछ गलत सोच हमारा नफ्स हमें देता है। मैं मुख्तसर में चंद मिनट बाकी है, मैं चाहूंगा कि चूंकि ये सुने हुए हैं, अलग अलग मौकों पर आप अलग अलग उलमा के नाम से ये बातें सुनते रहते हैं, मैंने इसको नफ्स के मौजू पर इन चीजों को जमा कर दिया है। हम अपने नफ्स की अगर तरबियत करना चाहें तो हमारे अंदर जो कुछ खराब आदतें हमारी जात में, हमारे नफ्स में जो कुछ खराब आदतें हैं उसको छोड़ना है, और जो अच्छी आदत है उसके मुकाबले में उसको देना है। मिसाल के तौर पर हमारा और आपका नफ्स जो है ना, तारीफ सुनने को बड़ा पसंद करता है। हमारा और नफ्स, आपका नफ्स तारीफ सुनने को बड़ा पसंद है। कोई हमारी तारीफ कर दे तो हमारा नफ्स फूट जाता है, मोटा हो जाता है, हम खुद भी मोटे हो जाते हैं, और हम चाहते हैं ये लोग हमारी तारीफ करें। ये भी चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, और कभी कभार अगर लोग तारीफ करने वाले ना हो तो खुद ही अपनी तारीफ करने लगते हैं लोगों के सामने, मजलिसों में, दस्तनाती के सामने, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो। इस्लाम ने इस मिजाज को पसंद नहीं किया। इस्लाम ने कहा कि ये मिजाज अच्छा नहीं, तुम खुद भी अपनी तारीफ न करो, वला तुज़क्कू अनफुसकुम, तुम अपनी बड़ाई, अपनी सफाई, अपनी पाकी खुद बयान न करो। हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, अल्लाह जानता है किसके दिल में तकवा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा, वो बेहतर जानता है। तुम अपनी बड़ाई, अपनी पाकी, अपनी सफाई, अपनी बुजुर्गी बयान करके ना, दूसरों के बारे में भी इस्लाम ने इसको पसंद नहीं किया। कहा नबी पाक ने, कोई अगर मुंह के सामने तारीफ करे तो जो तारीफ करता है उसके मुंह में मिट्टी मार दीजिए, उसके मुंह में मिट्टी डाल दीजिए। क्यों? तारीफ करने के बाद इंसान बहक जाता है, भटक जाता है, उसके अंदर रियाकारी आने लगती है, और तारीफ करने वाले की नियत भी अच्छी नहीं होती है। तो तारीफ खुद करना या तारीफ को सुनना, ये मिजाज इस्लाम को पसंद नहीं है। हमें इससे दूर रहना चाहिए। काम करें, अच्छे से अच्छे काम करें, बड़े से बड़े काम करें, नेकियों के काम करते जाए, लेकिन लोगों की तारीफ लेने के बारे में ना सोचें। बस अल्लाह से सिला की और बदले की उम्मीद रखें। दूसरी चीज, इंसान खुद को बड़ा
समझना बड़ा अच्छा इंसान को लगता है। इंसान खुद को अगर उसको बड़ा समझा जाए तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। हर मजलिस में उसका नाम हो, हर ओहदे में उसका नाम हो, बड़े बड़े ओहदे मिले, बड़े बड़े पोस्ट मिले, बड़ी बड़ी सरदारियां मिले, राजा बने, महाराजा बने, तो इंसान को ये चीजें बहुत पसंद है। लेकिन इस्लाम ने इस चीज को पसंद नहीं किया। इस्लाम ने एक दुआ सिखाई है, बड़ी प्यारी दुआ है। क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ क्या करते थे? अल्लाहुम्मा जअलनी फी आइनी सगीरा, ऐ अल्लाह तुम मुझे और मेरे ज़हन को ऐसा बना कि मैं अपनी नजर में अपने आप को छोटा समझूं। पते की बात आप समझ लें, और लोगों की नजर में अल्लाह को मुझे बड़ा बना। मैं अपने आप को बड़ा काम करने के बाद, मिसाल के तौर पर मैंने बड़ी मस्जिद बनाई, उसके बावजूद मैं अपनी नजर में कहूं और मैं अल्लाह से कहूं अल्लाह मैंने क्या काम किया है? दुनिया में लोग बड़े बड़े काम करते हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो बस ये छोटा सा काम किया। लेकिन अगर अल्लाह ने लोगों की नजरों में लोग मुझे बड़ा समझे मेरे कामों की वजह से, मेरी अच्छाइयों की वजह से, मेरी अच्छी आदतों की वजह से, अच्छी खसलतों की वजह से, ये अच्छी बात है, लोग बड़ा समझे। लेकिन मैं अपने आप को अपनी नजरों में छोटा समझूं और अल्लाह से दुआ करूं कि अल्लाह मेरा ज़हन ऐसा बना कि मैं अपने आप को छोटा समझूं। इसी तरीके से तीसरी जो खराब चीज हमारे नफ्स की है वो हिर्स। इंसान के अंदर लालच जैसी बड़ी बुरी बना है, और लालच एक ऐसी चीज है, देखिए पैसे कमाना, दौलत बनाना इस्लाम इससे नहीं। पैसे कमाए, खूब कमाए और खूब अल्लाह के रास्ते में दे, इस्लाम इससे मना नहीं करता। लेकिन पैसे जेब तक रहे ठीक है, पैसे परसों तक रहे वो भी ठीक है, हमारे अकाउंटों में रहे वो भी ठीक है, हमारी जमीनों में, बिल्डिंगों में, गाड़ियों में पैसे फंसे रहे ये भी ठीक है, हमारे दिल तक पैसे ना नहीं पाए, दौलतें, पैसे, मानो जर हमारे दिल में जगह न बनाने पाए, ये बहुत जरूरी है। जब दिल में पैसे जगह बना लेते हैं, फिर सजदे में भी पैसों का हिसाब होता है, फिर सजदों में भी गाड़ियों का हिसाब होता है, फिर सजदों में भी तिजारतों का हिसाब होता है कि वहां से इतने आने थे, इतने आए, इतने नहीं आए, क्या हुआ, कैसे नहीं आया, नमाज से निकलेंगे और उसका नहीं, पैसों को अपने दिल तक आने न दे। हमको भी ये काम करना है, आपको भी ये काम करना है। जिस दिन पैसों को उसकी जगह पर रखेंगे, उस दिन हम और आप कामयाब हो जाएंगे। वरना अल्लाह का हाकुम तकादुर कह रहा हो, इस ज्यादती की चाहत ने तुम्हें अल्लाह से गाफिल कर दिया, अल्लाह के रसूल से गाफिल कर दिया, कब्र से दूर, कब्र की फिक्र से तुमको दूर कर दिया, हश्र के मैदान में हिसाब किताब से दूर कर दिया, आखिरत की फिक्र से दूर कर दिया। ज्यादती की चाहत बड़ी खराब चीज है। ज्यादती की चाहत क्या चाहत है और इंसान क्या जहन रखता है? देखिए, इंसान के पास हदीस में आता है कि अगर सोने की दो वादियां हो, वादी कहते हैं दो पहाड़ों के दरमियान के हिस्से, दो पहाड़ है और दरमियान में जो खाली जगह होती है उसको वादी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान के पास दो वादियां भरकर भी सोने हो, आप इसको समझ ले, मैदान तो बड़े मैदान भर करके भी सोने हो तो इंसान का पेट नहीं भरेगा। इंसान कहेगा मेरे पास तीसरा मैदान भी होता सोने से भरा हुआ तो कितना अच्छा होता। इंसान की हिर्स और इंसान की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान के इस पेट को या इंसान के इस हिर्स को, इस लालच को कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज पूर्ण नहीं कर सकती और बंद नहीं कर सकती। आखिर की दो बातें बता करके अपनी बात को खत्म करता हूं। इंसान के अंदर एक और बुरी चीज होती है गुस्सा। जायज बातों में गुस्सा हो और फिर इंसान ठंडा हो जाए यहां तक तो ठीक है, लेकिन गुस्सा आया अपने गुलाम को मार दिया, गुस्सा आया अपने बेटे को मार दिया, गुस्सा आया अपनी बीवी को मार दिया, गुस्सा आया अपने शागिर्द को मार दिया, गुस्सा आया किसी को गाली दे दी, गुस्सा आया किसी को बुरा भला कर दिया, किसी को धक्का दे दिया, किसी की दिलासारी कर दी, किसी को तकलीफ पहुंचा दिया। इस्लाम इसको गुस्से को पीने की नसीहत करता है इस्लाम। अगर हम चाहते हैं कि अपने नफ्स की तरबियत करें और अपने नफ्स को ऐसे गुनाहों से और ऐसी चीजों से बात करें, तो हमारे अंदर एक और बुराई होती है इंतकाम लेने की, बदला लेने की,
किसी ने एक बात की तो हम 2 बात कहेंगे, किसी ने 1 थप्पड़ मारा हम 2 थप्पड़ मारेंगे। इस्लाम बदला लेने की इजाजत तो देता है, लेकिन सिर्फ उतना ही बता नहीं सकते हैं जितना के आपके साथ जुल्म हुआ है, उससे ज्यादा बदला लेने की इजाजत नहीं। उसमें भी इस्लाम कहता है वलमन सबरा व गफरा, कि अगर किसी ने सब्र कर लिया और माफ कर दिया तो ये बहुत बड़ा काम है। यानी कि इंतकाम लेने का जो मिजाज हमारे और आपके अंदर है, हमारे और आपके समाज में है, इस्लाम इस चीज को पसंद नहीं करता है। इस्लाम का मिजाज उसके बरखिलाफ माफ कर देने वाला मिजाज है। हमारा और आपका भी यही मिजाज होना चाहिए। हमें और आपको भी अपने नफ्सों को ऐसी गलाजतों और ऐसी गंदगियों से पाक करना चाहिए, तभी जाकर के हम और आप नेकियों की लज्जत और मिठास को पा सकते हैं और बुराइयों से हम और आप आसानी से अपने आप को बचा सकते हैं। हम अखीर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि परवरदिगार तुम तमाम मुसलमानों को अपने नफ्सों की पाकी की फिक्र की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार तुम तमाम मुसलमानों को अपने नफ्स की पाकी की तरफ ध्यान देने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम जो बातें कही गई हैं परवरदिगार आलम उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम जब तक हमें दुनिया में जिंदा रख, हालत ईमान पर जिंदा रख, और जब हमारा खत्म हो हालत ईमान पर फरमा। आमीन।